In this lecture, I will discuss the absorption. What is the absorption? As you know that in the previous lecture, I have already discussed what is the pharmacokinetics and already discussed the absorption, metabolism, distribution, and excretion. And here today we will discuss the absorption and the factor affecting to the absorptions and the pharmaceutical factors, drug factors, biological factors. These are the factors we will discuss in this lecture. So come at the first absorption. When you intake a drug in a solid form like tablet, it will go to the stomach by your esophagus. Okay, when you take a tablet or solid dosage form, it will go through the esophagus and reaches into the your stomach. There will be absorb environment will be acidic absorb environment, and further after degradation and disintegration, it will reaches into your intestinal. There will be the basic medium. In this basic medium, the drug will be absorbed into the systemic circulation. After absorption of the drug, it will reaches to the receptor site and it will bind there and shows its action. So this is the mechanism. Already I have discussed in the previous lectures. You can see our previous lecture. I given the link in the comment section or description box. So, as all you know very well, what is the absorption? Absorption defined as the passage of the drug from the site of the administration into the systemic circulation. मतलब कि जो ड्रग होता है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वहां से क्या होता है परमेट होकर के वो कहाँ पहुंचता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में. ठीक है. बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन. ठीक है. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एब्जॉर्प्शन. तो जो फैक्टर्स यहाँ पे जैसे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एब्जॉर्प्शन हमारा पहला कौन सा है फर्दर 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है. पहला है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, दूसरा है ड्रग फैक्टर्स, तीसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स it describes the disintegration, dissolution, formulation and the particle size. ठीक है. डिजो एंड डीटी. डिजो मतलब डिसोल्यूशन टाइम, डीटी मतलब डिसइंटीग्रेशन टाइम. ओके. सो disintegration time and dissolution time, it also refers to affect the absorption of the drug. Suppose that you have taken the paracetamol, it will go through the your esophagus and reaches into the systemic circulation. There will be disintegrate. This disintegration time is less. Then further it will lead the slower of the absorption of the drug. And if the dissolution time after the disintegration of the drug, it is responsible for the dissolution in the that particular medium. Suppose that your stomach have the acidic medium, so it should be dissolved there. If it is not able to dissolve, then it will not absorb also. First of all, drug is disintegrate, then further it will go to the dissolution. If it is not dissolution in that medium, so it will not absorbs also, and it will not move to intestinal also. So that is the factor which causes the slower the rate of absorption. So dissolution time, slower the dissolution time and slower the disintegration time leads to slower the absorption. If the absorption is slower, डिले एब्सॉर्प्शन है आपका, तो क्या करेगा आपका थेरापेटिक इंडेक्स जो होगा वो भी अच्छा नहीं होगा. ठीक है. थेरापेटिक जो इफेक्ट होगा वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा. तो ये हमारे जो फैक्टर होते हैं बहुत ही इसको अफेक्ट करते हैं. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. तो अगर आपको डिस्क्राइब करना है एग्जाम में तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. एक बीच में सेंटर में आपने एब्जॉर्प्शन लिख लीजिए और सारी तरफ आप प्रॉपर ये डिसोल्यूशन, फॉर्मुलेशन, लिपिड सॉल्युबिलिटी, पीएच आयनाइजेशन,
इन सभी को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। अब अगर आपको डिवाइड कैटेगरी नहीं करनी आती तो आप इस तरीके से वहां पर बना सकते हैं और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखने में भी प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यू विल गेट गुड मार्क। एंड फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन टाइम, वही लिखा है, द डिले इन द डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन लीड्स टू द स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेट विद द प्योरली वाटर सॉल्युबल ड्रग लाइक एस्पिरिन रिजल्ट इन द डिलेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब फॉर्मुलेशन की बात आती है तो फॉर्मुलेशन में क्या होता है, पर्टिकुलर डोसेस फॉर्म बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मुलेशन की जो प्रोसेस होती है, सपोज दैट आपने टैबलेट बनाया, उसमें डाइल्यूएंट वगैरह ज्यादा मिला दिया और बाइंडर्स आपने ज्यादा मिला दी, तो वो क्या हो जाएगा, जो टैबलेट वहां पर जाकर, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि डिसइंटीग्रेशन टाइम डिसोल्यूशन टाइम शुड बी प्रॉपर फॉर योर desired absorption or desired absorption which will leads to the therapeutic action, ठीक। अब यहाँ पर जो आपने टैबलेट बनाई थी उसमें डाइल्यूएंट और बाइंडर्स ज्यादा हो गया, तो वो क्या हो गई, टैबलेट हमारी हार्ड हो गई। अब जब हार्ड टैबलेट है तो वो हमारे स्टमक में जाकर के वो क्या होगी, डिसॉल्व नहीं होगी, डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो जब ब्रेक डाउन नहीं होगी तो डिसॉल्व नहीं होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूटेगी, तो क्या होगा, जो जैसी मैंने ड्रग टैबलेट ली थी जिस टैबलेट को, वो वैसी की वैसी ही हमारी स्टमक में पड़ी रहेगी, ठीक। वो डिसॉल्व होगी या डिसइंटीग्रेट होगी वो भगवान जाने, वो शायद नहीं भी होगी या होगी तो बहुत ही स्लो रेट होगी, पता लगे वो 3-4 दिन भी ले सकती है, तो क्या ही फायदा। अभी आपकी फीवर है, अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, इफ द ड्रग इज रिलेटेड टू द टू स्लोअर रेट देन इट विल नॉट शो इट्स इफेक्ट। सो हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मुलेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। भाई यहाँ पर लिखा है, द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन आर द फॉर्मुलेटेड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड एब्सॉर्प्शन inert substances used with the drugs as diluent like starch and the lactose may sometimes interfere with the absorption rate, ठीक है। पार्टिकल साइज क्या होता है, पार्टिकल साइज एज आई टोल्ड यू दैट द पार्टिकल साइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द affecting of the absorption rate. If the slower particle, if the less particle size will lead to the fast absorption of the drug, ठीक है। वही लिखा है, स्मॉल पार्टिकल साइज इज इंपॉर्टेंट फॉर द बेटर एब्सॉर्प्शन ऑफ द ड्रग लाइक corticosteroid digoxin and the aspirin and the tolbutamol are the better absorbed when the given as a small particle, ठीक है। जो corticosteroid होता है, digoxin होता है, एस्पिरिन होता है, टॉलब्यूटामोल का, अगर इनको जब हम स्मॉल पार्टिकल्स में बनाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा ये एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही अच्छा एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा क्या करते हैं, रिजल्ट शो करते हैं बॉडी में, ठीक है। क्योंकि जल्दी से ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिल जाते हैं, जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिल जाते हैं तो वो प्रॉपरली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, जल्दी रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद वो अपना एक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होते हैं, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो बहुत ही फास्ट एब्जॉर्ब होते हैं। लिपिड सॉल्युबल ड्रग मैंने बता ही दिया था, वो इस वजह से अच्छा फास्ट एब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। इस वजह से जो हमारा लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है वो क्या करता है, बहुत ही फास्ट वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर पीएच और आयोनाइजेशन जो फैक्टर है हमारा, वो क्या होता है, जो अनआयनाइज्ड फॉर्म वाली ड्रग होती है, मतलब कि जो अनआयनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो हमारा ड्रग लिपिड सॉल्युबल मतलब लिपोफिलिक इन नेचर होता है, वो हमारी क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को बहुत ही अच्छे से क्रॉस कर जाता है, ठीक है। अब जो आयनाइज्ड ड्रग होती है, वही देखो लिखा, जो आयनाइज्ड ड्रग होंगी यहाँ पर, द पुअरली एब्जॉर्ब्ड व्हाइल द अनआयनाइज्ड ड्रग आर लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, ये क्या करेंगी, फास्ट एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड एट द बोथ एसिडिक एंड द अल्कलाइन पीएच, ठीक है। जो आयोनाइज्ड ड्रग होती हैं उनको अल्कलाइन और एसिडिक मीडियम पीएच की जरूरत होती है, ठीक है, तब वो जा करके एब्जॉर्ब होती हैं। तो इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं, ये जो फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करते हैं आयनाइज्ड ऑफ द पुअरली एब्जॉर्ब ड्रग, ठीक है।
पीएच जो आयनाइजेशन होता है, ये प्रॉपर्टी हमारी ड्रग फैक्टर होते हैं। एक लिपिड सॉल्युबिलिटी ये भी होते हैं। तो ड्रग फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं? फर्दर दो चीजें हैं, लिपिड सॉल्युबिलिटी और दूसरी क्या है? पीएच आयनाइजेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारा क्या आता है? एरिया एंड द वस्कुलैरिटी ऑफ द सरफेस, एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक, अब देखो, सपोज मैं यहाँ पे इस तरीके से समझाना चाहूंगा। सपोज दैट आपको एक सीप दे दी गई जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, ठीक, और आपको 10 किलो आटा दे दिया गया कि आपको ये इसको क्या करना है? सीविंग करनी है इससे। तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा। अगर यही जो सीव है, सीव 5 सेंटीमीटर डायमीटर की ना हो करके आपको 25 सेंटीमीटर की डायमीटर वाली सीव दे दी जाए और बोला जाए इसी 10 किलो आटे को आपको क्या करना है? सीविंग करनी है, छानना है। तो क्या होगा? वो जल्दी छन जाएगा, क्योंकि उसमें जो छानने का एरिया है, जो सेविंग है, डायमीटर जो है उसमें, ठीक है, जहां से वो आटा छनेगा उसका क्या है? वो सरफेस एरिया बड़ा है। तो आपका क्या हो जाएगा? सेविंग जल्दी हो जाएगी और उसका 5 ही सेंटीमीटर का तो आटा भी कम आएगा। ठीक है, फास्ट क्या होगा? वो नहीं हो पाएगा सेविंग। तो इस वजह से जो लार्जर सरफेस एरिया होती है, ठीक है, किस एब्जॉर्प्शन के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर कम सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो क्या होगा? हमारा एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी क्या होती है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ठीक है, ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, ठीक, जो हमारा ड्रग होता है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मोटिलिटी कुछ नहीं, जब यूजुअली हम लोग इसका सीधा मतलब मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो ड्रग, सॉरी, जो फूड का मूवमेंट होता है, वो क्या होता है? थोड़ा सा दब दब कर आगे बढ़ता है, दबता है, फिर इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा जो होता है ड्रग भी बढ़ता है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा इस तरीके से लिया गया, ठीक, अब ये इस तरीके से आया, ये यहाँ पहुंचा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ? इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक। तो ये जो हमारा जो ड्रग आया जो इसके साथ में, वो इस तरीके से आते आते ये इस तरीके से इसमें गया, ठीक है, तो ये इंटेस्टाइनल में आया। तो ये जो हमारा ड्रग आया वो क्या होता है? जो हमारी इस तरीके से ये बढ़ता हुआ आगे आता है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है, ठीक। गैस्ट्रिक इम्पेन टाइम, इफ द गैस्ट्रिक इम्पेन इज फास्टर, ठीक है, अगर हमारा जो पेट है, ठीक है, जो हमारा स्टमक है, वो क्या है? बहुत जल्दी खाली हो रहा है, ठीक है, तो पासेस ऑफ द ड्रग टू द इंटेस्टाइन, ठीक है, इज क्विकर, हेंस द एब्जॉर्प्शन इज फास्ट। ठीक है, तो जो हमारा गैस्ट्रिक इम्पेन टाइम जो है वो फास्टर है, तो हमारा जो ड्रग का जो इंटेस्टाइन तक पहुंचने में जो प्रोसेस, जो टाइम लग रहा है, वो वो फास्ट होगी। अगर हमारी गैस्ट्रिक इम्पेन टाइम फास्ट है, तो हमारा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा। एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा तो हमारा थेराप्यूटिक एक्शन फास्ट होगा। ठीक है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी के व्हेन द हाईली इंक्रीज एज अ डायरिया द ड्रग एब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस। जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि उसकी रेट को अफेक्ट करेगा। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो हमारा है, जब भी हम ड्रग लेते हैं तो कुछ ड्रग हमारी क्या हो जाती है, जैसे इंसुलिन वगैरह हो गई, हमारे पेट में ही क्या हो जाती है? ये डिग्रेडेट हो जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन हुआ, ये भी हमारे क्या डिग्रेडेट हो जाता है, ठीक, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचने से पहले ही डिग्रेडेट हो जाती है, ठीक, इसलिए इसको क्या होता है? प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है और फर्स्ट पास्ट इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ड्रग्स होती हैं एक हायर डोज में दी जाती हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। अगर हमारा जो
फूड का प्रेजेंस वो हमारे गैस्ट्रिक एम्पटाइम में, प्रेजेंस ऑफ द फूड डिलेड द गैस्ट्रिक एम्पटाइम, जो हमारा फूड प्रेजेंस है सपोज दैट हमारा किसमें, स्टमक में, तो वो क्या होता है गैस्ट्रिक एम्पटाइम टाइम को डिले कर देता है। जब गैस्ट्रिक एम्पटाइम टाइम डिले होगा तो हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ द फूड डिले द गैस्ट्रिक एम्पटाइम टाइम डाइल्यूट्स द ड्रग एंड डिलेड द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, drugs may form the complex with the food constituent, and the such complex are poorly absorbed. Example: tetracycline chelate calcium present in the food, hence their bioavailability is decreases. ठीक है, अब आपने मान लीजिए कोई भी ड्रग ली, ठीक, और आपने अभी खाना खाया है, तो क्या होगा, गैस्ट्रिक एम्पटाइम टाइम आपका स्लो हो जाएगा। ठीक है, आपका पेट खाली नहीं है, आपने कोई ड्रग ली, वो जा करके वहां पर पेट में गई, उसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, जो भी वहां पर फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट थे उनके साथ वो चिलेट फॉर्म बना लिया। जब चिलेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसका मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाता है। ठीक, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ गया मतलब पार्टिकल साइज बढ़ गया, पार्टिकल साइज बढ़ गया तो मतलब कि जो एक्वस पोर्स हैं या कोई लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो वो क्या होगा, उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिल नहीं पाएगा। ठीक, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं मिल पाएगा तो फर्दर लीड्स टू द डिक्रीज इन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा तो फर्दर हमारा क्या होगा, जो हमारा ड्रग एक्शन है वो हमारा शो नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द पेरेंटल रूट। ठीक है, अब जो एब्जॉर्प्शन सपोज है पेरेंटल रूट से हो रहा है तो वहां पर किस तरीके से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो वो सब हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑन इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रावेनस में क्या होता है, डायरेक्ट आपने वेन्स में दे दिया ड्रग को बाय यूजिंग द इंजेक्टर और इंजेक्शन। ठीक है, आपने डायरेक्ट वेन में दे दिया तो यहाँ पर अब ड्रग को ब्लड सर्कुलेशन मिलाने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में आपने ड्रग को दे दिया है तो वहां पर आपको ना डिसइंटीग्रेशन होने की जरूरत है उस ड्रग को, ना डिसॉल्व होने की जरूरत है, और ना ही उसको एब्जॉर्प्शन की जरूरत है। वो डायरेक्टली आपने कहा दे दिया, वेन्स में दे दिया, वो जाकर के अब सीधे उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, अब उसको सीधे डिस्ट्रीब्यूट होना है मिल करके ब्लड में, अब उसको और कुछ काम नहीं है। ठीक, तो ये होता है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक, वो 100% होती है कि मतलब जितना मैंने ड्रग दिया, अगर 50 मैंने एमजी ड्रग दिया है तो इंजेक्शन में लोड करके हमने तुरंत इंट्रावेनस दे दिया और वो जा करके पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। मतलब कि जितना मैंने 100% अगर ड्रग दिया था तो 100% वो बायो अवेलेबिलिटी हमारी ब्लड सर्कुलेशन में है। ठीक, अब इंट्रामस्कुलर में क्या होता है, द ड्रग डिपॉजिट इनटू द मसल्स एंड द ड्रग मॉलिक्यूल्स शुड डिसॉल्व इन द टिश्यू फ्लूइड्स। ठीक है, अब जब इंट्रामस्कुलर देते हैं तो हमारा जो ड्रग होता है, हम लोग जैसे हम लोग डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो डाइक्लोफिनेक के इंजेक्शन होते हैं जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड से क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं पहले, फिर उसके बाद धीरे से वो एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सबकटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन इज स्लोअर बट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज समवॉट स्टेडी। ठीक है, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, वो ठीक होती है, तेज होती है। ठीक है, अब इनहेल्ड एब्जॉर्ब ड्रग क्या होता है, जो इनहेल मतलब कि जो हम लोग इनहेल करते हैं, आर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द पल्मोनरी एपिथेलियम पार्टिकुलरली ऑफ द लिपिड सेल बल्बन्स। ठीक है, जो हमारी ब्रोंकाइज होती हैं, पल्मोनरीज होती हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू की बनी होती हैं। ठीक है, अब ये एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, सॉफ्ट टिश्यू की, ये क्या करते हैं जब हम लोग इनहेल करते हैं तो वहां पर ये पल्मोनरीज जो भी हैं तो इसका एक काफी लार्ज एरिया है, तो ये क्या करती हैं, तुरंत इसको क्या करनी है, इनहेल करने पर ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, ऑन टॉपिकल एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे कोई क्रीम है, ऑइंटमेंट है, उसको क्या करते हैं हम लोग अपनी स्किन पर रब करते हैं या लगाते हैं, तो जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, डायरेक्ट जो ड्रग होता है स्किन के कांटेक्ट में आती है। ठीक है, फिर वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है थोड़ा स्लो करता है। ठीक है, द बट द एब्जॉर्प्शन इज रिलेटिवली स्लो बिकॉज ऑफ द मल्टीपल लेयर्स ऑफ द क्लोजली पैक्ड सेल्स इन द एपिडर्मिस, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर रेडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक, अब ये जो हमने सपोज दैट अपनी स्किन पे लगाया ड्रग को, अब वो क्या होगी, पहले ये एपिडर्मिस डर्मिस इन सभी लेयर्स को क्रॉस करते हुए तब वो कहीं जा करके एपिडर्मिस डर्मिस
ठीक, इन सभी लेयर को क्रॉस करते हुए हमारी कहाँ जाएगी, फैटी लेयर में पहुंचेगी। ठीक है, हाइपोडर्मिस में, तब जाकर के वो जहाँ पर वहाँ ब्लड वेन्स होगी उससे मिल पाएगी और ड्रॉप हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म होता है कुछ इस तरीके सा। जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये भी अफेक्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं बायो अवेलेबिलिटी। व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी? Bioavailability is the fraction of the administered drug that reaches the systemic circulation in unchanged form following the administration by any route। ठीक, अब बायो अवेलेबिलिटी कैसे फिर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब आपका ड्रग एब्जॉर्प्शन जब फास्ट होगा तो बायो अवेलेबिलिटी भी फास्ट होगी। ठीक, लेकिन बायोअवेलेबिलिटी इस टर्म को डिफाइन करता है कि कितना अमाउंट ऑफ द ड्रग प्रेजेंट है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सपोज दैट आपने 100% ड्रग दिया था, 100 mg दिया था ड्रग। अब हुआ क्या, ड्रग आपने इसोफेगस से गई होते हुए कहाँ गई, गैस्ट्रिक एम्पटाइम में गई। ठीक, वहां पर क्या हुआ, गैस्ट्रिक में जाकर डिजोल्व हुई, डिसइंटीग्रेट होकर के सब डिजोल्व हो गए एब्जॉर्प्शन में। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान जब हुआ क्या कि आपने जो 100% दिया था वहां पर जो ड्रग पहुंची है सिस्टमिक सर्कुलेशन वो तो 70% गई है। 30% क्या हो गई, वेस्ट हो गई या कुछ भी हुआ वो नहीं पता मुझे, या नहीं भी एब्जॉर्ब हुई। ठीक, कुछ ऐसे ड्रग पार्टिकल हो गए भाई नहीं एब्जॉर्ब हो पाए, लेकिन जो पहुंची कितनी 70% सिम तक पहुंची। तो यहाँ पर आपकी जो बायो अवेलेबिलिटी होगी वो क्या हुई, कम हो गई। 100% दी थी आपने लेकिन पहुंची कितनी, सिर्फ 70%। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट रीचेस द सिस्टम सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म टू फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनी रूट। Thus, when the drug is given intravenously, the bioavailability is 100%। मैंने भी बताया था कि अगर आप इंटरवेनस अगर ड्रग को दे रहे हैं तो इंजेक्ट करा रहे हैं डायरेक्ट आप वेन्स में, तो क्या हो रहा है वहां पर सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट आपकी जो ड्रग है मिल रही है, तो वहां पर बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, ऑन IMSC इंजेक्शन इज द सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्सॉर्ब द बायोअवेलेबिलिटी लेस ग्रेटर देन 75%। ठीक है, अगर आप लोग इंटरवेनस या सबक्यूटेनियस रूट को फॉलो कर देते हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो वो क्या होगी, उसकी वहां पर बायोअवेलेबिलिटी 75% से ज्यादा होगी। ठीक है, और वाइल जबकि हम लोग ओरल रूट में जब देते हैं तो बायोअवेलेबिलिटी में भी लो ड्यू टू द इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब हम लोग ओरल तरीके से देते हैं, ठीक है, ओरली देते हैं कोई टैबलेट को, तो वहां पर क्या होता है बायोअवेलेबिलिटी और भी कम हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग टू द एब्जॉर्प्शन। ठीक, एंड दिस इज द बायोअवेलेबिलिटी वी कैन डिफाइन। अब बढ़ते हैं, यहां पर आप, अब ये जो ग्राफ है हमारा, अब आप देख रहे होंगे ये पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन का ग्राफ है। ठीक है, ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया हमारा, ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया। अब इस जगह पे ड्रग हमारी क्या है, 0। अब ये धीरे धीरे ये क्या हुई, एब्जॉर्ब होना शुरू हुई, एब्जॉर्ब होना शुरू हुई, एब्जॉर्ब होना शुरू हुई। ये जो टी मैक्स है, ठीक है, ये हमारा जो टी मैक्स रहेगा। ठीक है, इस जगह पे हमारी जो ये टी मैक्स जो है यहाँ पर, अब ये जो ड्रग की कंसंट्रेशन होगी सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पर जो ड्रग की कंसंट्रेशन होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी। फिर जब ये अब किसमें ज्यादा होगी ड्रग की कंसंट्रेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ये एब्जॉर्ब हो रहा था। ठीक है, ये ड्रग प्रॉपर एब्जॉर्ब हो रहा था, ये एब्जॉर्ब होते कब तक एब्जॉर्ब होगा, जब तक कि हमारा उधर का क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब तक हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम नहीं होगी। ठीक है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये ड्रग कंटिन्यूअसली क्या होगा, एलिमिनेट भी होता रहेगा, रिसेप्टर से बाइंड होते 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 एलिमिनेट भी होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ठीक, ये हमारा क्या होगा, ये मैक्सिमम टी मैक्स। ठीक, इस तरीके से हम लोग, ये पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन का ग्राफ होता है, अगर आप इसको जरूर बनाएं। ठीक है,
बायो इक्विवेलेंस में क्या होता है, बायो इक्विवेलेंस में ये होता है कि जो भी आपके कोई भी दो सब्सटेंस हैं, ठीक, उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो सेम होती है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, इफ द टू फॉर्मुलेशंस ऑफ द ड्रग हैव द सेम बायो अवेलेबिलिटी दे आर बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस ऑफ टू फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग हैव द सेम बायो अवेलेबिलिटी आर द बायो इक्विवेलेंस। ठीक है, अब बढ़ते हैं। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस क्या होता है, therapeutic equivalence if the drug produce the same therapeutic response they are said to be therapeutically equivalent। ठीक है, अगर कोई ड्रग होता है वो क्या करता है, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स जो होता है उसका एकदम कैसा प्रोड्यूस होता है, ड्रग का सेम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर जो मैंने ड्रग ली उसका क्या होता है, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स अगर सेम प्रोड्यूस होता है तो वो क्या होता है, थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंस। फॉर द एग्जांपल इफ द ड्रग ए एंड ड्रग बी कैन प्रोड्यूस द सेम डिग्री ऑफ द डायूरेसिस, ठीक है, डायूरेसिस दे सेड टू बी द थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंस। जो डायूरेसिस क्या होता है मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। जो डायूरेसिस जो ड्रग्स होती हैं, ठीक, वो क्या कर देती है, यूरिनेशन को प्रमोट करती है, मतलब कि आपकी यूरिनेशन का जो अमाउंट है उसको बढ़ाती है, यूरिनेशन रेट को बढ़ा देती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायूरेटिक्स ड्रग बोलते हैं। ठीक है, डायूरेसिस का प्रोसेस मतलब डायूरेसिस का मतलब ये होता है कि जो ड्रग रेट को बढ़ाना। ठीक है, अब जैसे ड्रग ए है और ड्रग बी है, ठीक, ये क्या कर रही हैं, रेट को बढ़ा रही हैं, हमारी डिग्री ऑफ द डायरेसिस, ठीक है, प्रोड्यूस कर रही हैं। उसके बाद दे आर सेड टू बी थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट, और इस वजह से उनको क्या कह दिया गया, थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट ड्रग बोल दिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एज आई टोल्ड यू आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इट विल रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक, आफ्टर द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक, द ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, to the receptor side. After the drug reaches the systemic circulation, it gets distribution to other tissue. It should be cross the several barriers before reaching to the site of action। ठीक है, अब जब साइट ऑफ एक्शन में पहुंचने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ वेरियस टाइप के बैरियर्स होते हैं जिसको क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचना होता है, उस रिसेप्टर साइट पर पहुंचना होता है। अगर हमारा क्या होता है, अगर हेडेक में पेन हो रहा है, अगर मुझे हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा ड्रग कहाँ पहुंचना चाहिए, ब्रेन तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो उस पार्ट में पहुंचना भी जरूरी है। ड्रग को किसके थ्रू पहुंचेगा, सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही पहुंचेगा। अनआयनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ब्लड। मतलब कि अनआयोनाइज्ड मतलब क्या हो गया यहाँ पर, हाईली लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, क्या मतलब हो गया, लिपिड सॉल्युबल। ठीक, लिपिड सॉल्युबल ड्रग, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा वो क्या होगा, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट द बॉडी। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, प्लाज्मा में जब हम लोगों का ड्रग पहुंच जाता है किसी सिस्टम सर्कुलेशन में, तो क्या करता है, जो ड्रग हो किससे बाइंड होता है, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है उससे बाइंड होता है। ठीक है, जो एसिटिक ड्रग होता है वो हमारी किससे, एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है। जो बेसिक ड्रग होता है वो हमारी किससे, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन से, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होने के लिए होता है क्या है, बहुत ही जरूरी होता है, जिसके थ्रू ये कैरियर प्रोटीन बना करके कहाँ पहुंचता है, हमारे रिसेप्टर से बाइंड होता है जाकर के। ठीक, जब ये बाइंडिंग टूटती तो ये क्या होता है, उससे बाइंड हो जाता है रिसेप्टर से। ठीक, इस तरीके से। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द फार्माकोकाइनेटिक्स बिकॉज दिस इज ड्रग रीचेस टू द साइट ऑफ एक्शन देन बाइंड विद द रिसेप्टर एंड गिवन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो अगर प्रॉपर नहीं होगा
तो हमारा क्या होगा, ड्रग, पहली बात तो ड्रग प्लाज्मा से बाइंड होना चाहिए प्रॉपर, ठीक। फिर उसके बाद ब्लड फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, फास्ट होगा, तो क्या होगा, हमारा जो साइट ऑफ एक्शन होगा वहां तक पहुंच पाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी प्रॉपर। लिपोफिलिसिटी, अगर लिपोफिलिक ड्रग नहीं है तो हमारी क्या होगी, ब्लड ब्रेन बैरियर वगैरह जितने भी बैरियर्स हैं सबको क्या होगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो जहां पर उसको पहुंचना वहां पहुंच नहीं पाएगा। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए प्लाज्मा से बाइंड होना जरूरी है ड्रग को, ठीक। अगर वो बाइंड नहीं हो पाएगी तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करेगी, और फॉर्म कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करेगी तो वो पहुंच नहीं पाएगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी प्रॉपर, ठीक है। द ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, अगर ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट प्रॉपर नहीं है तो भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। क्यों, जब एब्जॉर्प्शन ही रेट नहीं प्रॉपर है, नहीं एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है, तो कैसे वो बाइंड हो जाए, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो पहले तो एब्जॉर्प्शन ही होना अच्छे से जरूरी है, तब तो वो बाइंड होगी, ठीक है, और तभी वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा है, ब्लड फ्लो के बारे में लिखा है, लिपोफिलिसिटी के, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है। ये सब शॉर्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अब बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक सच टाइप ऑफ वीडियो, एंड we will cover all the topics of the pharmacology and related to the pharmaceutics also. And if you like this video, please subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.